اب میں درخواست کر رہا ہوں سہیل انجم صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات پیش کریں. محترم جناب جی آر کیول صاحب، ہمارے دوست معصوم مراد آبادی صاحب، ڈاکٹر عقیل صاحب، ڈاکٹر احمد علی برقی صاحب اور دو شعیب رضا صاحبان اور عبدالباری مسعود صاحب اور خواتین حضرات، معصوم مراد آبادی صاحب نے بہت ہی پرمغز لیکچر دیا اور انہوں نے بہت ساری باتیں اٹھائیں، بہت سارے سوالات کھڑے کیے. انہوں نے نام کا ذکر کیا کہ ایڈیٹر نے کہا کہ نام نہیں دیں گے. ان کے ساتھ صرف نام کا مسئلہ تھا، میرے ساتھ نام اور دام دونوں کا مسئلہ تھا. میں 8 سال مختلف اخباروں میں کام کرنے کے بعد جب ہمارے ایک دوست نے جو قومی آواز میں تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے ڈیلی اخبار میں کام کیا، میں نے کہا نہیں لیکن میں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس کے ایڈیٹر موہن چراغی صاحب سے بات کی، انہوں نے مجھے بلایا اور میں گیا. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں ڈیلی اخبار میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں نے ڈیلی اخبار میں کام نہیں کیا، ہفت روزہ اخباروں میں کام کیا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سکھاؤں گا لیکن ایک شرط ہے. میں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے تم نوکری مت مانگنا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نوکری نہیں مانگوں گا. کہنے لگے دوسری شرط یہ ہے کہ میں تمہیں پیسے بھی نہیں دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مت پیسے دیجیے. 3 مہینے تک میں نے مفت میں کام کیا. جو ٹائم ہوتا ہے شام کی شفٹ کا پوری شفٹ رہتا تھا اور ہر طرح کا کام کرتا تھا. مفت میں کام کیا 3 مہینے تک. 3 مہینے کے بعد 600 روپے سے انہوں نے شروعات کی اور بالآخر انہوں نے کچھ سمجھا، کچھ محسوس کیا اور مجھے وہاں انہوں نے ملازمت دی اور بعد میں انہوں نے مستقل کیا. بہرحال یہ ایک معاملہ تھا جو میں نے پیش کر دیا. جی ڈی چندن میموریل لیکچر اس کے پہلے جب بھی ہوا ہے یا ان کے نام سے جو پروگرامز ہوئے ہیں اس میں خاکسار نے کوشش کی کہ حاضر ہو اور حاضر ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جی ڈی چندن صاحب سے میرے بھی کافی اچھے روابط رہے ہیں. 2006 میں میری میڈیا پہ جو پہلی کتاب آئی تھی میڈیا روپ اور بہروپ، اس کا اجرا اسی آڈیٹوریم میں ہوا تھا اور چندن صاحب نے اس پر ایک مضمون بھی پڑھا تھا. جب یہاں بھوگل میں رہتے تھے تو ان سے ملاقات یہاں ہوتی رہتی تھی. جب وہ چلے گئے تھے وہاں گڑگاؤں تو وہاں بھی جا کے ہم ان سے ملاقات کیا کرتے تھے. بہرحال ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر عقیل صاحب ان کے نام پہ لیکچرز کرتے رہتے ہیں، پروگرامز کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر عقیل صاحب نے تھوڑی دیر پہلے اپنی گفتگو میں آن لائن اور آف لائن کا ذکر کیا تھا کہ آج کورونا نے سب کو آن لائن کر دیا ہے اور اس سے یہ ہے کہ فیس بک لائیو ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میری ایک چھوٹی سی بہت ہی مختصر سی تحریر آن لائن اور آف لائن ہی پہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انسانی تخیلات کی رفتار بہت تیز ہے. زمانہ کتنی ہی ترقی کر لے اور خواہ پوری کائنات کو مسخر کر لے تب بھی وہ اختراعات و تخیلات کے قافلے کو پابا زنجیر نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جدت ترازی خواہ کتنی ہی اونچی جست لگا لے وہ قدیم انسانی اقدار و رواجات کو زیر نہیں کر سکتا. ایک بہت پرانا مقولہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. جب کرونا وائرس کے خونی پنجے نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور قذاق اجل نے اس کی سرپرستی میں انسانی زندگی کی پونجی لوٹنی شروع کر دی تو پوری دنیا یک لخت ایک نادیدہ دشمن کے نشانے پر آ گئی. دنیا کی سب سے ذی شعور مخلوق یعنی انسانوں پر بیک جنبش وائرس سکتہ طاری ہو گیا. دنیا ٹھپ ہو کر رہ گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب کارخانے عالم کی گرم بازاری دوبارہ شروع نہیں ہو سکتی. وائرس کے نشانے پر انسان کیا آیا اس کی تخلیقی حس بھی متاثر ہو گئی اور اس کے ذہن رسا کا قافلہ تھک کر بیٹھ گیا. لیکن پھر قدرت کے عطا کردہ اس کے شعور نے دھیرے دھیرے انگڑائی لینی شروع کی اور پھر اس قافلے نے جنبش کی، آگے بڑھنے لگا اور اب ایک بار پھر زندگی کی ہمہ ہمی لوٹ آئی ہے. کرونا وائرس کے بحرانی دور میں جہاں زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی وہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی نے ایسی جست لگائی کہ دنیا میں مواصلات اور ربط و ضبط کا ایک نیا کلچر پیدا ہو گیا. یہ نیا کلچر ہر جگہ دیکھنے میں آیا، حکمراں طبقے میں بھی اور عوامی حلقوں میں بھی، دانشگاہوں میں بھی، کاروباری اداروں میں بھی. رفتہ رفتہ پوری دنیا آن لائن ہو گئی. انٹرنیٹ انسانی سماج کا جزو لائن فک بن گیا.
वो कि पूरी दुनिया के बंद हो जाने की वजह से कुछ दिनों तक तमाम जबानों की अदबी, सकाफती और सहाफती सरगर्मियां मात पड़ गई थीं, लेकिन फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की ने महमेज लगाई और उन सरगर्मियों का सिलसिला अज सरे नौ शुरू हो गया। इसी के साथ साथ अदब की एक नई सिन्फ ने जन्म लिया, जिसे कोरोनाई अदब या कोरोना अदब कहा जाने लगा। कोरोना अफसाने लिखे जाने लगे और कोरोना गजलें और नज़में कही जाने लगी। बिलाशुबहा अदबी ज़ख़ीरे में यह एक इजाफा है। अलबत्ता मंजरनामा कदरे तब्दील हो गया। पहले अदबी मुबाहिस के लिए सेमिनार हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौर में जबकि समाजी फासले को बरकरार रखने के साथ साथ इंसानी जिंदगी बहुत सी पाबंदियों और बंदिशों में जकड़ उठी, तो सेमिनारों का इनेकाद नामुमकिन हो गया। ऐसे में दुनिया को एक नया लफ्ज वेबिनार मिल गया। कॉन्फ्रेंसों के लिए वेब कॉन्फ्रेंसिंग का लफ्ज इस्तेमाल होने लगा। हालांकि वेबिनार की इस्तेमाल होने लगा, अलबत्ता मुशायरों और कवि सम्मेलनों के लिए गालिबन कोई नया लफ्ज अभी तक तश्कील नहीं हो पाया है। उन्हें ऑनलाइन मुशायरे ही कहा जाता है। बहरहाल उर्दू ज़बान और अदब का काफिला भी दीगर ज़बानों के काफिलों की मानिंद कोरोना बुरान की जद पर आया और उसकी भी गाड़ी कुछ दिनों तक पटरी से उतरी रही। लेकिन अहले उर्दू भी दूसरों से कम नहीं, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के फ्यूज़ बरकास समेटने की अहलियत और काबिलियत रखते हैं। लिहाजा उन्होंने भी दूसरी ज़बानों के अदीबों और दानिश्वरों की मानिंद खुद को ऑनलाइन कर दिया। उर्दू अदब की सरगर्मियाँ भी असरनो शुरू हो गईं और वेबिनारों और वेब कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद का सिलसिला चल पड़ा। रफ्ता रफ्ता अहले उर्दू इससे इस कदर मानूस हो गए कि घर बैठे आलमी वेबिनारों, आलमी कॉन्फ्रेंसों और आलमी मुशायरों का इनेकाद होने लगा। नई नस्ल के लिए तो इस नए कल्चर को अपनाना बहुत आसान था, लेकिन पुरानी नस्ल ने भी इस नए माहौल में खुद को ढाल लिया, वो भी ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन प्रोग्रामों के इनेकाद में बड़ी सहूलतें हैं। कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर दावतनामा तैयार कीजिए और मेहमानों की खिदमत में व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए इरसाल कर दीजिए। उसमें मेज़बानों के लिए भी आसानी है और मेहमानों के लिए भी। मेज़बान के लिए ये आसानी है कि न तो कार्ड छपवाना है, न कहीं हाल बुक करना है, न ज़ोहराने अशाइए या नाश्ते का इंतज़ाम करना है। यहाँ तक कि मकाला निगारों को कोई एजाज़िया भी नहीं देना है, बस इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। अलबत्ता इत्तलाआत के मुताबिक यूनिवर्सिटियों या सरकारी इदारों की जानिब से होने वाले वेबिनारों और वेब कॉन्फ्रेंसों में एजाज़िया भी गालिबन दिया जाता है। लेकिन इंफरादी तौर पर जो लोग वेबिनार करते हैं वो इसका एहतमाम नहीं करते। उनका कहना होता है कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो मकाला नगारों को एजाज़िया दे सकें। बहरहाल वेबिनारों में मेहमानों को भी कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए भी बस इंटरनेट के कनेक्शन की ज़रूरत है। घर बैठे दुनिया जहान के किसी भी कोने में होने वाले वेबिनार में शिरकत कर लीजिए। हमारे अहमद अली बरक़ी आदमी साहब रोज़ाना आलमी मुशारा पढ़ते हैं। ये मामला कम खर्च पाला नशी है, बल्कि बेखर्च पाला नशी है। मशरिक़ की एक कहावत है कि हर्रे लगे न फिटकरी और रंग आए चोखा। आमतौर पर यूनिवर्सिटियों या उर्दू के बड़े इदारों या फिर खुद कफील किस्म के निजी इदारों की जानिब से जो सेमिनार होते हैं, उनके मकालों को किताबी सूरत में शाया करने की रिवायत रही है। लेकिन बेशतर वेबिनारों के मकाले किताबी सूरत में शाया नहीं हो पाते। उन्हें भी किताब का कालिब मिलना चाहिए। अलबत्ता इत्तलाआत के मुताबिक दिल्ली व बैरून दिल्ली के बाद अदबी इदारों की जानिब से वेबिनारों में पेश किए जाने वाले मकालात किताबी सूरत में शाया हुए हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक मुस्बत दूसरा मनफी। वेबिनार या ऑनलाइन प्रोग्रामों के भी दो रुख हैं। अभी तक इसके मुस्बत पहलू का जिक्र किया गया, अब ज़रा इसके मनफी पहलू पर गौर कर लीजिए। वेबिनार और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस या मुशायरे के लिए पहली शर्त इंटरनेट का कनेक्शन है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद ही हो, और अगर है भी तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसमें रुकावट नहीं पैदा होगी। आमतौर पर देखा गया है कि मकाला पढ़ते पढ़ते मकाला निगार की आवाज़ गुम हो गई या चेहरा गायब हो गया। अब इंतज़ार कीजिए कि कनेक्शन बहाल हो, तब फिर मकाला सुना जाए। ऐसे प्रोग्रामों में सामीन तो होते ही नहीं हैं, या होते हैं तो बहुत कम। आमतौर पर देखा गया है कि स्क्रीन पर सिर्फ मकाला निगार या मुकर्रिर मौजूद है, बाकी सब लोग गायब हैं। कोई अपनी वीडियो बंद करके दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया है, तो किसी की वीडियो तो नहीं बंद है, लेकिन उसकी तवज्जो कहीं और है। हमने ये भी देखा है कि बाज़ औक़ात मेज़बान भी गायब हो जाता है, सदर और मेहमान खुसूसी भी गायब हो जाते हैं। गोया सिर्फ मकाला निगार होता है, वही पढ़ता है और वही सुनता है। ये उसका मनफी पहलू है। सेमिनारों में बहुत से लोग लिहाज मुलाहिज़े में भी बैठे रहते हैं, दोहराने की भी एक कोशिश होती है।
जबकि वेबिनारों में ऐसी कोई कैद नहीं है। इसका एक मनफी पहलू ये भी है कि अब हर शख्स आलमी हो गया है। ऐसे ऐसे लोग जिनको आम हालात में न सेमिनारों में कोई पूछे और न ही मुशायरों में, वो भी बैनुल अक़वामी हैसियत के हामिल हो गए हैं। ऐसे लोग खुद जूम पर वेबिनारों और मुशायरों का एहतमाम करके आलमी सतह पर छा गए हैं। लेकिन ये भी देखने में आया है कि ऐसे लोगों ने शोहरत के लालच में वेबिनारों के मेयार को गिरा दिया है। किसी को भी पकड़ लिया, उसे मकाला पढ़वा लिया या किसी भी ऐसे शायर को मदऊ कर लिया जिसको आम हालात में मुशायरों के मुंतज़मीन सामीन की हैसियत से भी बुलाना गवारा ना करें। लेकिन इस नई सूरत हाल का एक खुशगवार पहलू है और वो ये है कि इसने मसाफतें ख़त्म कर दी और कुर्बतें बढ़ा दी हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि इंटरनेट ने कुर्बतें ख़त्म कर दी हैं, मसाफतें बढ़ा दी हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्रामों ने मसाफतें ख़त्म कर दी और कुर्बतें बढ़ा दी हैं। पहले बैनुल अक़वामी शख्सियात के ख़यालात जानने और उनसे इस्तिफ़ादा करने के लिए बैनुल अक़वामी सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद का इंतज़ार करना पड़ता था और चलकर सेमिनार हालों और कॉन्फ्रेंस हालों तक जाना पड़ता था। लेकिन अब आप घर बैठे उनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और वेबिनार का लिंक होना चाहिए। बहरहाल, जैसा कि जिक्र किया गया, हर चीज़ का एक मुस्बत पहलू होता है और एक मनफी। वेबिनारों और वेब कॉन्फ्रेंसों में भी मुस्बत और मनफी दोनों पहलू मौजूद हैं। सवाल ये है कि आप मुस्बत पहलू से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या मनफी पहलू से मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अहले उर्दू भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की से फैज़याब हो रहे हैं और उर्दू ज़बान व अदब का काफ़िला भी दूसरी ज़बानों के काफ़िलों के दोष बदोश आगे बढ़ रहा है। हमें इस नई और खुशगवार तब्दीली का खैर मक़दम करना चाहिए।